जय श्री राम, जय झूलेलाल। आज 2 दिसंबर दिन सोमवार का 2024। सबसे पहले योगा करेंगे, फिर योग और प्राणायाम करेंगे। इसमें आपको हमारे साथ साथ प्राणायाम प्रैक्टिस करना है। हम लोग 4 प्राणायाम करेंगे जिसमें टोटल समय 15 मिनट का लगेगा। पहला प्राणायाम जो हम करेंगे वो है भस्त्रिका। भस्त्रिका के लिए आप हो सके तो वज्रासन में बैठे, नहीं तो आराम से भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप चेयर पे, सोफे पे बैठ के भी कर सकते हैं इसको। वज्रासन से रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, इसलिए वज्रासन रेकमेंडेड है, अदरवाइज इट्स एब्सोल्युटली फाइन। नाउ इन भस्त्रिका, इफ यू ऑलरेडी नो, यू विल डू इट विद आईज क्लोज्ड। अगर आपको नहीं पता है, सो इट्स अ गुड आइडिया टू कीप योर आईज ओपन फॉर 1 राउंड। ओके, विल डू 3 राउंड्स ऑफ 20 ईच। Ready for round 1. Take positions, loose fist in front of your shoulders, elbows close to the body. Take a normal breath in, breathe out. Together for Bhastrika, breathe in, out, in, out, in, 3, in, 4, in, 5, in, 6, in, 7, in, 8, in, 9, in, 10, in, 1, in, 2, in, 3, in, 4, in, 5, in, 6, in, 7, in, 8, in, 9, in, 10. Relax. Palms on your thighs, open to the ceiling. If you don't feel comfortable with Vajrasan, you can do this sitting also. Round 2, take positions again. Loose fist in front of your shoulders, elbows close to the body. ढीली मुट्ठियां कंधों के आगे, कोहनियां शरीर के पास. For Bhastrika, together breathe in, out, in, out, in, 3, in, 4, in, 5, in, 6, in, 7, in, 8, in, 9, in, 10, in, 1, in, 2, in, 3, in, 4, in, 5, in, 6, in, 7, in, 8, in, 9, in, 10. Relax. Last round, take positions, normal breath in, breathe out. Bhastrika, together, breathe in, out, in, 2, in, 3, in, 4, in, 5, in, 6, in, 7, in, 8, in, 9, in, 10, in, 1, in, 2, in, 3, in, 4, in, 5, in, 6, in, 7, in, 8, in, 9, in, 10. Relax. आंखें बंदी रखिए. दिन सोमवार का 2024। वज्रासन में
में बैठे हैं तो सुखासन में बैठ सकते हैं, कभी भी अनकंफर्टेबल लगे तो. The next one that we're going to practice is called the breath of joy. Breathe in, expand your hands out, push your chest forward, and breathe out, push your hands forward and chest back. Breathe in, inhale, breathe out, breathe in, out, breathe in, out, 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 and relax. विश्राम करें. The next breathing that we're going to practice is called the box breath. Just follow the instructions and keep doing as much as possible. Take a normal breath in, breathe out. For box breathing, breathe in 2, 3, 4. Hold 2, 3, 4. Out 2, 3, 4. Hold 2, 3, 4. In, hold, out, hold, 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 and relax. And
And the last one that we'll practice is Nadi Shodhan Pranayam. 5 repetitions, 5 rounds. Left hand in Chin Mudra, right hand, index and middle finger between your eyebrows. Thumb on the right nostril, ring finger on the left. Breathe in. Close your right, breathe out left. Breathe in left. Close your left, breathe out right. Breathe in right. Close your right, breathe out left. In. Out. 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 Relax and keep your eyes closed for 1 minute. Take a deep breath in and breathe out. If you wish to continue for some more time with your eyes closed, you may do so. Or if you feel like, you may gently open your eyes. धीरे से आंखें खोल सकते हैं. Thank you so much for following up on this video. Continue this video every single day to get more better and comfortable with the breathing, and so that it helps you to keep your eyes closed for a longer. Come to this video where we are going to do the daily minimum stretches required for you to stay healthy. Let's start. So first we stand tall, keep a little bit distance between your feet and make your feet square. मतलब दोनों पैरों को सीधा कर लेना है. They are parallel to each other. We keep our hands on the waist and we start with hip rotation. So आप कोशिश करेंगे कि आपका सर जो है वो सेम जगह पर हो और आप सिर्फ कमर को गोल घुमा रहे हो. ऐसे सेशन में कुछ 3 लोग आए थे और मैंने सोचा था कि मुझे लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है. तो बड़ा मतलब कितना कि हम एक साल में 1500 को 5000 करेंगे. मैं बोला ठीक है, बहुत बढ़िया, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. 1500 के 1 लाख भी हो जाते तो मुझे क्या. हमारी क्लास का एक बहुत ही सिंपल सा रूल है कि 45 मिनट ओनली काम, नो बकवास. अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि एक ऑनलाइन योगा इंस्ट्रक्टर कितने लोगों को योगा सिखाता होगा, तो आप शायद बोलोगे 50, 100, 200. तो मैंने जब अपनी जर्नी शुरू करी थी ऑनलाइन योगा सिखाने की, तो पहले सेशन में कुछ 3 लोग आए थे और मैंने सोचा था कि मुझे लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है. तो बड़ा मतलब कितना, मैंने सोचा
नमस्कार, आज हम करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को अपने मोबाइल में प्ले कर लेना है और मेरे द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, प्राणायाम का अभ्यास सदैव खाली पेट करना चाहिए या फिर आप भोजन के कम से कम 3 घंटों के पश्चात प्राणायाम का अभ्यास करें। इसके अभ्यास को उचित रहेगा यदि आप प्रातःकालीन करते हैं। जिन लोगों के लिए सुबह प्राणायाम का अभ्यास कर पाना संभव नहीं है, वो लोग शाम को भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। प्राणायाम के अभ्यास को उचित रहेगा यदि आप किसी खुले स्थान पे करें, जैसे कि पार्क या फिर घरों की छतों इत्यादि पर। जो लोग घर के भीतर बैठ के प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, उन्हें अपने घर की खिड़की और दरवाजों को खोल लेना चाहिए। प्राणायाम के अभ्यास को आप मेरी तरह जमीन पर योगा मैट लगा के किसी भी सुखद आसना, जैसे कि सुखासना, पद्मासना या फिर वज्रासना से भी प्रारंभ कर सकते हैं। जो लोग जमीन पर बैठने में असमर्थ हैं, वो लोग कुर्सी या फिर पलंग पर बैठ के भी प्राणायाम के अभ्यास को कर सकते हैं। आपको अपनी गर्दन, कमर, मेरुदंड को सीधा रखना है। आप चाहें तो प्राणायाम के दौरान अपनी आंखों को खुला या फिर बंद भी रख सकते हैं। इस श्रृंखला का हमारा सबसे पहला प्राणायाम है, जिसे आप भस्त्रिका प्राणायाम के नाम से जानते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम को करने के लिए आपको मेरी तरह सुखद आसना में आ जाना है। आपकी गर्दन, कमर, मेरुदंड सीधी रहेगी। सर्वप्रथम अपने दोनों हाथों से मुट्ठी बनाएंगे और अपने कंधों के समीप इस प्रकार से ले आएंगे। आपको अपने चेस्ट के सामने नहीं रखना है। यदि आप ऐसे रखते हैं तो आपका जो ये लंग्स का एरिया है, ये संकुचित हो जाएगा और जब ये संकुचित हो जाएगा तो इसमें मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं जाएगी। इसलिए हमें अपने चेस्ट को इस प्रकार से खोल के रखना है। मुट्ठियों को अपने कंधों के समीप ही रखना है। जब हम इनहेल करेंगे तो इनहेल करते हुए अपने हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ पे हमारी मुट्ठियां खुल जाएंगी। एक्सेल करेंगे तो हम हाथों को पुनः नीचे लेके आएंगे और यहाँ पे हमारी मुट्ठियां बंद जाएंगी। भस्त्रिका प्राणायाम में हमारी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, यानी कि श्वास को भीतर भरने और श्वास को बाहर छोड़ने की गति समान होती है। मिसाल के तौर पे यदि आप श्वास को भीतर भरते हुए 4 का काउंट करते हैं, तो आपको श्वास को बाहर छोड़ते हुए भी 4 तक ही काउंट करना है। अब इसे एक बार करके देखते हैं। सर्वप्रथम हम 20-20 के 3 राउंड से प्रारंभ करेंगे। हाथों की मुट्ठियां बना लेंगे। इनहेल करते हुए हमें अपने हाथों को ऊपर लेके जाना है और यहाँ पे हमारी मुट्ठियां खुल जाएंगी। फिर एक्सेल करते हुए हाथों को पुनः नीचे लेके आएंगे और मुट्ठियां यहाँ पे बंद हो जाएंगी। चलिए एक बार इसे करके देखते हैं। 5 राउंड। तो ये था हमारा पहला राउंड। दूसरे राउंड और पहले राउंड के बीच में हमें थोड़ा सा विश्राम करना है, यानी कि हमें थोड़ा सा गैप करना है। एक बार डीपली इनहेल और एक्सेल करेंगे। पूरी चेस्ट में, अपने लंग्स में हमें ऑक्सीजन को भरना है और फिर धीरे से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे राउंड की तरफ। हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, कंधों के समीप लेके आएंगे। इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर और एक्सेल करते हुए नीचे। इनहेल, एक्सेल। श्वासों के साथ करके देखते हैं। 5वां राउंड। ये था हमारा दूसरा राउंड। जब आप भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास को करते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ये थे भस्त्रिका प्राणायाम के हमारे 2 राउंड। तीसरे राउंड पे बढ़ने से पहले एक बार डीपली इनहेल एक्सेल कर लेंगे। गर्दन, कमर, मेरुदंड को सीधे ही रखेंगे। तीसरे राउंड के लिए स्थिति में आना है। मुट्ठियों को बंद करके अपनी चेस्ट के अगल बगल रख लेंगे। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, हाथ ऊपर, एक्सेल, नीचे।
5 क्रिया तो सब कर सकते हैं जिसमें कोई विशेष बल नहीं लगता, तो सब सीधे बैठ करके यहां से शुरू करो। भस्त्रिका, ऐसे लंबा श्वास लेना और छोड़ना। मुस्लिम भाई भी हैं या बहनें भी हैं, जवान भी हैं, विद्यार्थी हैं, यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं। ऐसे आराम आराम से, मध्यम गति से या तीव्र गति से, जो यंग है ना वो ऐसे जोर से कर सकते हैं। अभी 2 मिनट में तो नाक गर्म हो जाते हैं, करके देखोगे तो पता लगेगा, पूरा अंदर से गर्मी आने लगती है। नथुने पूरे नॉस्ट्रिल्स में जैसे फायर होने लगता है ना, ऐसी तेज गर्मी आ जाएगी। नॉर्मल ब्रीथिंग में 500 ml ऑक्सीजन अंदर जाता है, डीप ब्रीथिंग में 5000 से 10,000 ml ऑक्सीजन अंदर जाता है। ऐसे और जो जवान है मैंने बता ही दिया, वो तेज कर लेना ऐसे। मैं तो 5 मिनट कर लेता हूं ऐसे सर्दी में। दिसंबर में भी मेरे माथे पर पसीना आ जाता है, मैं गर्म कपड़े नहीं ओढ़ता, स्वेटर, रजाई, ये गर्म कपड़े नहीं पहनता। क्यों? भीतर की गर्मी इतनी है, वही नहीं झेलती। भीतर की जिसकी गर्मी खत्म हो गई, बाहर की गर्मी कुछ नहीं करती। भीतर है गर्मी, भीतर है ताकत, भीतर है नॉलेज, भीतर है पीस, भीतर है शांति, भीतर है ज्ञान मस्तिष्क में, और वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड इमोशंस, लव, कंपैशन, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, अनलिमिटेड पीस, पावर, ये सब अंदर है। लेकिन कैसी है? साइलेंट है। सारी चीजें अंदर हैं, सारा टैलेंट अंदर है, लेकिन कैसा है? बोलो, जोर से बोलो। साइलेंट है। उस साइलेंट को एक्टिवेट करने के लिए डिफरेंट प्रकार के सब प्रोसीजर्स हैं। अब ये करो, देखो, ये दूसरा प्रोसीजर है। पहले भरा, छोड़ा, अब क्या कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं, श्वास को बाहर छोड़ दिया, लय के साथ करो। ये एक विधि लगातार करो, लय के साथ करना, रुकना नहीं है। अभी ऐसे करोगे ना तो देखो, ये मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक, ये शरीर विज्ञान में योग एक अपने आप में बहुत बड़ा साइंस है, योगिक साइंस। ये मेडिकल साइंस से भी ऊपर का है। देखो, ऐसे नीचे से देखो, राइट साइड में लीवर, लेफ्ट साइड में स्प्लीन, फिर बीच में इंटेस्टाइन, इधर है पेनक्रियास। देखो, ये पूरा शरीर विज्ञान समझा रहा हूं आपको। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, अंदर है किडनी, अंदर डीप में जाकर के ना, यहाँ पीछे लगी हुई है किडनी। पुरुषों का प्रोस्टेट, माता बहनों का यूट्रस, ओवरी, पुरुषों के टेस्टिकल्स इससे अच्छे हो जाते हैं। टेस्टिकल्स अच्छे होंगे तो क्या फायदा होगा? उससे आपको किसी भी मर्द को नामर्दी की बीमारी नहीं होगी।
कितनी दवाइयां खाते हैं लोग ताकत के लिए। कपालभाति करो, किसी को कोई नामर्दानगी की बीमारी नहीं होगी। लेडीज को ओवम पूरा बनेगा, पुरुषों को स्पर्म पूरा बनेगा। इससे टेस्टिकल्स अच्छे होते हैं, इससे यूट्रस ओवरी ये अच्छे होते हैं, इससे प्रोस्टेट अच्छे होते हैं, इससे किडनी के अंदर स्टोन नहीं बनेगा, गाल स्टोन नहीं बनेगा। ये इससे किडनी स्टोन गाल स्टोन दोनों नहीं बनेंगे, और छोटे मोटे बन भी गए तो खत निकल जाते हैं। ये हमारा एक्सपीरियंस है। और लेकिन एक और प्राणायाम है, कपालभाति बता रहा था ना, ये सीधे बैठो अनुलोम विलोम, इससे दिमाग बहुत तेज हो जाता है। मैं हमेशा फिटनेस में भी नंबर 1 रहा, स्टडी में भी नंबर 1, क्लास में ही नहीं, जो स्टडी में पढ़ता था उसमें देश में नंबर 1 था। अष्टाध्यायी महाभाष्य हमारी पढ़ाई होती है, उसमें व्याकरण ग्रामर होता है, उसमें आयुर्वेद होता है, दर्शन शास्त्र होता है, वेद शास्त्रों का अध्ययन होता है। देखो ऐसे तुम स्टडी में रहोगे नंबर 1, ब्रेन बहुत शार्प हो जाएगा, कभी स्ट्रेस नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, कभी तुम्हारे जीवन में निराशा नहीं आएगी। देखो ये माताओं बहनों की भी एक बड़ी समस्या है, सिर में दर्द, माइग्रेन पेन, उससे खत्म हो जाता है। करो सब ऐसे, पहले उंगली ऐसे लगाई, ऐसे, ये बहुत जबरदस्त। इसके करने से ना आपको अभी ही शांति मिलेगी, मन शांत हो जाता है एकदम, और दिमाग में उल्टे विचार ही नहीं आते। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, नहीं तो अपने आप में अंदर से उल्टे उल्टे विचार आने शुरू हो जाते हैं, फिर बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, सिजोफ्रेनिया हो जाता है, एक्टिव डिप्रेशन हो जाता है। अनुलोम विलोम करो, शांति से करना है, थोड़ी देर लगातार करोगे तब आपको पता लगेगा इसका फायदा क्या है। इससे बीपी की गोलियां बंद हो जाती है पहले ही दिन से। लौकी का जूस पीना और ये प्राणायाम करना। बीपी सुबह में पूछ रहा था कितने लोगों की गोलियां छुड़वा दी हमने। बीपी की गोली, शुगर की गोली, थायराइड की गोली, नींद की गोली, कोलेस्ट्रॉल की गोली, गैस, कब्ज, एसिडिटी की गोलियां बंद हो जाती। आप लगातार करो जरा, तो ऐसे 5 मिनट अनुलोम विलोम करने से ना कोई भी भजन के साथ, प्रार्थना के साथ, जो जैसा जब तब करता है, ऐसे करके 5 मिनट करने से ना एकदम माइंड सेट हो जाता है, पूरी बॉडी की एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां, 8 चक्र, 9 द्वार है, पंचकोश है, पंच प्राण है, पंचोपप्राण है, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्ट, एक एक सेल, उसके जीन्स, क्रोमोसोम्स, उनसे बनने वाले टिश्यू, ऑर्गन्स। ये शरीर ऐसी रचना है, बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं कि सारा ब्रह्मांड इस पिंड में है। इसलिए संस्कृत में बोलते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो इस पूरे यूनिवर्स में है वो इस बॉडी में। तो सारी शक्तियां, मैंने कहा ना अपने भीतर है सारा ज्ञान, लेकिन वो साइलेंट है, वो एक्टिवेट हो जाता है योग करने से। फिर ये जिनका पेट और गड़बड़ है, डायबिटीज है, बहुत तरह की बीमारियां हैं, तो ये बाह्य प्राणायाम बड़ा जबरदस्त होता है। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, पेट को अंदर खींच लिया, थोड़ी को यहां लगा देते। तो ये 3 बंद लगते हैं, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। ये तरीका है इसका प्रोसीजर है, मेथड है इसका। एक तरीके से अभ्यास करते हैं तो मनुष्य की जो अंदरूनी ताकतें हैं, अंदरूनी जो उसका ज्ञान है, अंदरूनी जो उसकी संवेदनाएं हैं, सारी शक्ति सामर्थ्य जाग जाता है। फिर गले और थायराइड के लिए मैं कहता हूँ, थायराइड की गोली, बीपी की गोली, शुगर की गोली, आर्थराइटिस की गोली, ये सब बंद हो जाती है। वो ऐसे ही होती है, एक गले को टाइट करके ना ऐसे, करके रोक के रखते हैं थोड़ी देर, फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ते हैं। गले को टाइट किया और फिर अंदर भरा,
इससे स्नोरिंग, रात को जो खर्राटे मारते रहते ना, बहुत शोर मचाते हैं। और जो मोटे हैं भाई बहन, वो तो खर्राटे जरूर मारते हैं। और जिनको कफ रहता है उनको भी खर्राटे आते हैं। ये बड़ी बीमारी बन जाती है बाद में, स्नोरिंग के बाद स्लीप एपनिया। सोते सोते फिर सांस रुक जाता है, उनको मशीन लगानी पड़ती है, फिर बड़ा खतरनाक होता है। स्नोरिंग स्लीप एपनिया ठीक हो जाता है कपालभाति, उज्जाई और अनुलोम विलोम से। स्लीप एपनिया, स्नोरिंग, थायराइड की गोली बंद, कोलेस्ट्रॉल की गोलियां बंद कपालभाति से। फैटी लीवर खत्म, शुगर खत्म। अगर आपको अपने जीवन को सही दिशा देनी है, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना है, मानसिक स्तर पर शांत रहना है आपको, तो आपको अपने जीवन में कुछ अच्छी आदतों को जोड़ना होगा और वो आपको बड़े लाभ देने वाली होगी। हम 5 प्राणायाम के अभ्यास समझेंगे जो कि आपके लिए परम कल्याणकारी रहेंगे। आप एकाग्रता पूर्वक इस मार्गदर्शन को समझे। आपको प्रतिदिन सुबह के समय इन प्राणायामों का अभ्यास करना होगा। आपका थोड़ा ही समय लगेगा और ये एक अच्छी आदत आपको हर बीमारी से बचा लेगी। आप सदा स्वस्थ रहेंगे। आपको समझना है कि कैसे अभ्यास करने हैं और इनको जीवन में धारण करना है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या अभ्यास आपको करने हैं। हमारे हठ योग के शास्त्रों के अंतर्गत कहा गया है कि अथासने दृढ़े योगी वशी हित मिताशना, कि प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले आपको एक बात की सजगता जरूर रखनी होगी। क्या वो विषय है? अथासने दृढ़े योगी, कि आपको एक आसन में बैठना होगा और आसन में स्थिरता से बैठना होगा। स्थिरता के लिए यहां पर कहा गया है कि आपको अपनी कमर को सीधा करके बैठना है। कोई भी योगिक साधना है उसमें बार बार ये कहा जाता है कि कमर को सीधा करके बैठें। जैसे ही आप कमर को झुकाते हैं तो आपके तमोगुणी स्वभाव बढ़ने लगते हैं, आपको आलस्य आना शुरू हो जाता है, नींद आनी शुरू हो जाती है। अगर आप दाएं बाएं ले जा करके शरीर को बैठते हैं तो चंचलता बढ़नी शुरू हो जाती है, मन विचलित होने लगता है। अगर आप कमर को सीधा करके स्थिर होकर के बैठते हैं तो मन शांत होता है और जो अभ्यास आप कर रहे हैं उससे आपको ठीक लाभ मिलते हैं। तो आप समझें कि आपको सिद्धासन में बैठना है या फिर आप पद्मासन में बैठे, या फिर अगर आप सुखासन में भी बैठ रहे हैं तो ध्यान रखना है कि कमर आपकी सीधी होनी चाहिए। इस बात का आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या अभ्यास करने हैं, कैसे करने हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम का ही अभ्यास करना है, क्योंकि इसके नाम से ही आप देखें नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी यानी कि जो आपके शरीर में एनर्जी चैनल्स हैं, शोधन यानी कि उनका प्यूरिफिकेशन। आप समझें कि जो आपकी नाड़ियां हैं जब तक वो साफ नहीं होंगी तब तक उनमें प्राण का प्रवाह नहीं होगा। प्राण को आप ऐसे समझें कि ये एक ऊर्जा है जो हमारे शरीर के सभी कार्यों को करती है। आप अगर कुछ सोच भी रहे हैं तो समझे उसके पीछे भी एक प्राण कार्य कर रहा है। प्राण 5 प्रकार के होते हैं जिनके बारे में हमने पहले मार्गदर्शन किया है। डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो हम साझा करवा देंगे। साथ ही साथ पद्मासन और सिद्धासन की वीडियो भी हम डिस्क्रिप्शन में साझा करवा देंगे, वहां से अवश्य देख लें। अब आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम आपको कैसे करना है। तो आपको स्थिर होकर के बैठना है, अपने हाथ को इस स्थिति में लेकर के आना है, अपनी दाईं नासिका को आपको बंद करना है और बाईं नासिका से ध्यान रखें धीमी गति से आपको सांस को अंदर खींचना है। तो आपको दाईं नासिका को बंद करना है और बाईं नासिका से धीमा 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 सांस अंदर लेना है। उसके बाद आपको बाईं नासिका को बंद कर लेना है और दाईं नासिका से सांस को बाहर छोड़ना है। फिर आपको दाईं नासिका से ही सांस को अंदर बढ़ना है और बाईं नासिका से बाहर छोड़ देना है। तो इस प्रकार का आपका ये नाड़ी शोधन का एक अभ्यास हमने आपको कहा। आपको ध्यान रखना है कि जिस नासिका से आपने सांस अंदर लिया फिर आपने बाहर छोड़ा, जिस नासिका से बाहर छोड़ा उससे ही वापस आपने अंदर लिया, फिर दूसरी नासिका से बाहर छोड़ा और फिर अगर आपने बाईं नासिका से छोड़ा है या दाईं से छोड़ा है उससे ही आपने वापस अंदर लिया।
इतना आपको बस ध्यान रखना है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बाई नासिका से ही इस अभ्यास की शुरुआत करनी है। ये नाड़ी शोधन का एक प्रकार है, आपको इसका अभ्यास करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम के और अन्य प्रकार भी होते हैं। ये जो अनुलोम विलोम आप अभ्यास सुनते हैं, ये नाड़ी शोधन का ही एक प्रकार है। तो आप समझें कि आपको इसका अभ्यास करना है। और अगर आपको नाड़ी शोधन के विषय में और जानकारी चाहिए तो हमने इस पर पहले विस्तृत मार्गदर्शन किया है, वो भी हम साझा करवा देंगे। जो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम का आपने अभ्यास किया है, इस प्राणायाम के अभ्यास से आपको मानसिक लाभ प्राप्त होंगे। चिंता तनाव की स्थिति बनी रहती है, उसमें विशेष आपको लाभ मिलेंगे। मन आपका शांत हो जाएगा, विचार आपको ठहरे हुए अनुभव होंगे। किसी को माइग्रेन जैसी समस्या है, उसमें भी अच्छे लाभ मिलेंगे। इंसोम्निया की समस्या है, नींद नहीं आती है, ये अभ्यास आप सोने से पहले भी उस स्थिति में कर सकते हैं, तब भी आपको इसके अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। तो ये अभ्यास आपका हुआ। दूसरे स्थान पर जो अभ्यास आपको करना है वो है भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। भस्त्रिका प्राणायाम परम हितकारी अभ्यास है। इसमें आपको अपने शरीर में प्राण वायु का स्तर जो है वो बढ़ाना है। आप समझें कि आपकी कोशिकाओं को दो ही चीजें चाहिए होती हैं, एक पर्याप्त मात्रा में प्राण वायु ऑक्सीजन वहां तक पहुंचे, दूसरा ठीक प्रकार से न्यूट्रिशन पहुंचे। और जो आप ये भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, ये क्या कार्य करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ये बाहर छोड़ता है, यानी कि गंदगी शरीर की बाहर आती है और शुद्ध प्राण वायु ऑक्सीजन का स्तर शरीर में बढ़ना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ ये ब्लड के सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है तो ज्यादा मात्रा में प्राण वायु और ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन आपकी कोशिकाओं तक पहुंचना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पूरे शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। आपकी जो त्वचा है वो निखरनी शुरू हो जाती है, बेहतर होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां पर जो रिपेयरिंग का काम है वो ज्यादा अच्छा हो जाता है। आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है और आपके शरीर के प्रत्येक अंग पर, संस्थान पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो अगर आपको अपने स्वास्थ्य को बहुत बेहतर बनाना है तो आपको ये भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना है। आपको ठीक प्रकार से बैठ जाना है कमर सीधी करके, और आपको दो तरीके से अभ्यास करना है। पहला अभ्यास आपको धीमी गति से करना है, और दूसरा अभ्यास जब आप पहले अभ्यास को 1 महीना 2 महीना तक कर लेते हैं, उसके बाद आप इसकी गति थोड़ी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपको हार्ट से संबंधित समस्याएं हैं, हाई बीपी की समस्या है, उस स्थिति में आपको जो अभ्यास करना है वो धीमी गति से ही करना है, तेज नहीं करना है। तो पहला अभ्यास आपको ठीक प्रकार से ऐसे करना है। ये आपका पहला अभ्यास रहेगा। इसमें आपको ध्यान देना है कि जब आप सांस को अंदर ले रहे हैं तो पेट आपका बाहर की तरफ जाएगा, सांस को बाहर छोड़ रहे हैं तो पेट आपका अंदर की तरफ जाएगा। ये इसमें आप ध्यान रखें। और अपनी छाती को भी आप फुलाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको पूरा केंद्र बना करके पेट पर ही ध्यान देना है। छाती इसमें बाहर की तरफ जाएगी और आपका थोड़ा पेट भी इसमें बाहर आएगा, जिससे कि आप ज्यादा मात्रा में प्राण वायु का संचय शरीर में कर सकेंगे। ये इसका पहला अभ्यास हुआ। दूसरे अभ्यास में थोड़ी गति को बढ़ा देना है और इस प्रकार अभ्यास करना है। तो इस प्रकार से आपको ये भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना है। ये हमारा दूसरा अभ्यास हुआ। तीसरे स्थान पर जो आपको अभ्यास करना है वो है भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। भ्रामरी प्राणायाम हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है, जो अपनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा लगे रहते हैं या फिर जो बहुत ज्यादा ऑफिस का कंप्यूटर पर बैठ करके काम करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि ये आपके मन को तुरंत ही शांत करता है। इस अभ्यास को आप करेंगे तो इसके तुरंत बाद आपको बड़ा अच्छा अनुभव होगा। आप समझें कि इससे आपकी जो स्मृति है वो भी अच्छी होगी, दिमाग आपका हमेशा शांत रहेगा। किसी को नींद ना आने की समस्या रहती है, जैसे कि हमने नाड़ी शोधन में भी कहा, वो भी एक विश्रांति देने वाला अभ्यास है
उसमें भी ये लाभ मिलेगा। और इस अभ्यास में भी आपको नींद अच्छी आएगी, माइग्रेन की समस्या है वो आपकी समाप्त हो जाएगी, आंखों के लिए भी आपके ये अच्छा है, और मस्तिष्क के लिए तो बहुत ही उपयोगी ये अभ्यास रहने वाला है। कैसे करना है? आपको इस प्रकार से षडमुखी मुद्रा का अभ्यास करना है। आपको दोनों उंगलियों को बीच के अपने आंखों के ऊपर रखना है, ऊपर वाली उंगली को आईब्रोज के ऊपर और नीचे वाली उंगली को नासिका के पास आपको रखना है, और अपने अंगूठों से आपको अपने कानों को ठीक प्रकार से बंद कर लेना है। जो भाग आपके कानों के पास में रहता है ऊपर से उसको दबाना है, तो आपके कान ठीक प्रकार से बंद हो जाएंगे और आपको भ्रमर की ध्वनि करनी है, यानी कि इस प्रकार की आपको ध्वनि करनी है। ध्यान रखना है ध्वनि आपकी भारी होनी चाहिए, जिससे कि गुंजन ज्यादा हो। गुंजन ज्यादा होगा तो आपका जो वाइब्रेशन है ये आपके जो मस्तिष्क है उसको शांति देगा। From the first happiness course to okay, so there are so many ways to improve happy hormones. Sunlight, early morning exercise. You know that every one of 5 women. When I came here, I was very closed off and I didn't really try to make. Last year in April, inspired all of us, especially. In 2021, 537 million adults had diabetes. This is projected to increase to 643 million by 2030. And one of the main reasons for this is sedentary lifestyle. Together, we can stop this from happening. Let's understand diabetes. Every time you eat something sweet, pancreas releases insulin depending on the amount of sugar you have consumed. This insulin takes sugar to the liver for processing so our system can have just the right amount of sugar levels. When pancreatic function gets affected, so does the insulin production. remember when you had that bumper? Do you know the secret of Panchagani, the 5 fires? Fire has always been associated with purification, and this is the secret behind it. There are 5 types of fires. Number 1, Bhutagani. This is the physical fire.
So sit in an easy and comfortable posture. Keep your spine straight. Roll your shoulder back and down. Close your elbow to Mudra. And very gentle close your eyes. Take a deep inhale. Slowly exhale. Once again take a deep inhale. Slowly exhale. Last time take a deep inhale. And slowly exhale. Now chanting mantra Om 3 times. Inhale. Keep on your face and very gentle relax. Again, keep your spine straight. When you inhale, bring your head up. Exhale and head down. Again, inhale, bring your head up. Exhale and head down. Come on, inhale, head up. Exhale and down. Now inhale, come in center. When you exhale, turn your neck right side. Again, inhale, come in center. Exhale and left side. Again, inhale. Exhale, turn your neck right side. Come on, inhale. Exhale and left side. Now inhale, come in center, keep your spine straight. When you exhale, bend your neck right side. Again, inhale, come in center. Exhale and bend left side. One more time, inhale. Exhale and bend right side. Again, inhale. Exhale and left side. Now inhale, come in center. When you exhale, head down. Start the neck rotation for 3 times. Inhale, rotate from the right, and exhale, complete the rotation. 1. Again, inhale. Exhale and down. 2. Last time, inhale. Exhale and 3. Just opposite rotation. Come on, 3. 2. And 1. Now lift your both palms. Gentle massage of your neck. Now your both hands down. Lift the bricks and your both legs straight. And set your both legs. दोनों हाथ लेफ्ट साइड. दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड करते हुए कम इन वज्रासन. दोनों हाथों की एल्बो को नी से टच करते हैं काम डिस्टेंस. बीच की उंगली से एक palm distance and come in cat pose Marjariasana. Make sure shoulder and wrist is one line, hip and knee is one line. दोनों नी के बीच hip के बराबर gap. When you inhale, look up, depressing your spine, expand your abdomen, open your chest. Complete exhale, lift your spine, contract your abdomen, try to touch your chin to your chest. Again inhale, look up, depressing your spine. Exhale, lift your spine, contract your abdomen. Again inhale, look up, depressing your spine, expand your abdomen. Complete exhale, lift your spine, contract your abdomen. Last time inhale, look up, depressing your spine.
Exhale, lift your spine. Now tuck your toes, lift your knee, lift your hip and come in mountain pose. Come in mountain pose. पैर से चलते चलते दोनों हाथों के बीच आए. Good, wait. दोनों हाथ अपने घुटने के नीचे पैर पर रखेंगे और सीधा रखेंगे. Stretch. And then inhale, raise the both arms up. Exhale and both hands down. Good. दोनों पैरों को इस शोल्डर के बराबर गैप दीजिए. दोनों पंजा आपका सीधा. We will practice some warm-up exercise. दोनों पैर का पंजा पूरा सीधा होगा. सीधा करिए, दोनों हाथ सामने लंबा, मुट्ठी आपकी बंद, हाथों को करिए क्रॉस. चूंकि हम एक्सरसाइज फॉर्म करेंगे इसलिए ब्रीदिंग अकॉर्डिंग टू यू, आपके अकॉर्डिंग ब्रीदिंग होगा. जब या तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे या तो इनहेल और एक्सहेल करेंगे. ओके, पर दोनों पंजों पे बराबर भार, आपके कमर से नीचे, आपके कंधे से नीचे पूरी बॉडी फिक्स. और स्टार्ट द शोल्डर रोटेशन. कम ऑन. 1 2 एल्बो पूरा सीधा. 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Just opposite. Come on. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. Come on, right hand up, left hand back. Hip muscle is tight. Change. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. Good. दोनों हाथ सामने. Clap. Then पीछे clap. 1 2 3 4 come on 5 6 7 8 9 and 10. दोनों हाथ सामने. पंजा आपका फिक्स होना चाहिए. Then twist. Come on. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड अपने कमर पे. हिप मसल टाइट, पंजा आपका सीधा और पंजों पे बराबर भार रहना चाहिए. देन बैंड लेफ्ट साइड. 1 come on, change. 2 3 4 5 6 7 8 9 come on, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. कमर पे हाथ रखिए. Inhale, bend back. Come on, bend back, everyone. Exhale, bend forward 90 degree. Come on, 90 degree, bend forward. Again, inhale, bend back. Exhale and bend forward. Again, inhale, bend back. Exhale and bend forward. Come on, inhale, bend back. Exhale and bend forward. Come on, inhale, hands up and bend back. Exhale and bend forward. Come on, inhale, bend back. Exhale and bend forward. One more time, inhale, bend back. Exhale and bend forward. Last time, inhale, bend back. Exhale and bend forward. दोनों हाथ अपने कमर पे रखिए. वापस आइए और कमर घुमाना स्टार्ट करिए. कम ऑन. 1 बड़ा बड़ा सर्कल बनाएंगे. 2 3 4 5 6 7 and 8. Just opposite. Come on, 8 7 6 5 4 3 2 1 and relax. Good. दोनों पैरों के बीच गैप बढ़ाइए. सामने फेस इस तरफ साइड. मैट का यूज करते हुए फेस साइड. चेंज.
इधर इस साइड फेस, दोनों पैरों के बीच गैप रहे, ज्यादा से ज्यादा, कम ऑन, और ज्यादा बढ़ाओ, दोनों पंजा सीधा, आपका पंजा सीधा होना चाहिए। देन फर्स्ट बेंड फॉरवर्ड, वी विल प्रैक्टिस द 4 एक्सरसाइज। दोनों हाथ साइड पे, दोनों हाथों से जमीन को टच करेंगे 2 बार, कम ऑन, 1 2, हाथ अंदर, 1 2, एल्बो बेंड, 1 2, खड़े होके पीछे, 1 2, अगेन 1 2, हाथ अंदर, 1 2, elbow bend, 1 2, bend back, 1 2, again 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, last time, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, again bend forward, come on, raise your both arms up at shoulder level, right hand से left पैर टच करिए और ट्विस्ट करिए, देन कम ऑन, चेंज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, घुटना पूरा सीधा, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20, come on, knee down and jump, come back, फेस इस साइड कर लीजिए, राइट हैंड सिर पे, लेफ्ट हैंड अपने कमर पे, कम ऑन, जैसे राइट पैर ऊपर करेंगे एल्बो को थाई से टच करें, ओके, कम ऑन, स्टार्ट, 1 2 वेट 3, एक साथ करेंगे सभी, 4 5, नो, राइट लेग, 6 7 8 9 10, change the leg, same practice, come on, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and relax, दोनों हाथ ऊपर, come on, right leg ऊपर and touch the from to the left hand से right पे hand से left पैर, okay, come on, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, गुड, दोनों हाथ सामने लंबा, दोनों पंजों के बीच गैप, अच्छे सांस लेंगे, पूरा सांस छोड़ते हुए, नी डाउन एंड हिप डाउन, कम ऑन, 1, घुटना पंजे से आगे नहीं जाएगा, कम ऑन, इनहेल अप, एक्सेल एंड डाउन, 2, अगेन इनहेल अप, एक्सेल एंड डाउन, 3, कम ऑन, इनहेल, एक्सेल एंड डाउन, 4, अगेन इनहेल, exhale and 5, one more time, inhale, exhale and 6, come on, inhale, 7, again inhale, exhale and 8, one more time, inhale, exhale and 9, last time, inhale, exhale and 10 and hold, close your eyes, keep breathing, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, come on, start jogging for 2 to 3 minutes, it's a very important for calorie burn, come on, अगर आपको कमर में दर्द रहता है, घुटने में तकलीफ है और एंकल पेन रहता है, तो आप सिंपल जॉगिंग करेंगे, बाकी लोग थोड़ा जंप करते हुए जॉगिंग करें, कम ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाथ पीछे, कम ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, come on, jumping jack, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, come on, twisting, 10 9 8 7 6
5, 4, 3, 2, 1. Last 10 skipping. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Just opposite. Come on, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and relax for a moment. आप चाहें तो सामने झुक जाइए, अपने हाथों को फ्री करिए, मुंह से सांस छोड़ते रहिए, या आप चाहें तो अपने रिस्ट पे हाथ रखिए, आंखें बंद करके थोड़ी देर रिलैक्स करें. जस्ट फॉर मोमेंट रिलैक्स. चेंज करना नहीं पड़ेगा, लगेगा तो देख लेंगे. रिलैक्स फॉर मोमेंट, जस्ट फॉर मोमेंट रिलैक्स. रिलैक्स हो जाइए अपने हिसाब से. रिलैक्स फॉर मोमेंट. Okay. Now we will start our yoga practice. मैट के फ्रंट पे आएंगे सभी. We will practice ताड़ासन first. दोनों पंजों के बीच या तो मिला के रखिए दोनों पंजों को, या फिर शोल्डर के बराबर गैप. As you wish, as you comfort. पंजा आपका सीधा होना चाहिए, 11 safe. Okay, this is very important. Suck your belly in, roll your shoulder back and shoulder down, elbows straight, fingers apart and neck straight. Raise your both arms up at shoulder level first. Your palm facing up. Try to more twist. Stretch your both arms and raise the both arms up. Interlock your finger and palm facing up. Try to stretch your arms, stretch your spine. पंजे को फिक्स करिए, पेट को अंदर खींचे and hold. 1, keep breathing or normal breathing. 2, 3, 4, 5. Inhale, lift your heel and hold. किसी एक बिंदु पर ध्यान, सांसें according to you. Last 5. Come on, 4, 3, 2, 1. Exhale and both hands down. Good. दोनों पंजों के बीच शोल्डर के बराबर गैप. Practicing the तिर्यक ताड़ासन. दोनों पंजा सीधा, heel little bit out. Raise your both arms up. Shoulder level again, palm facing up, heel little bit out. Sir up. Yes. Heel बाहर करें. Raise your both arms up again. Interlock your finger and palm facing up. Suck your belly in. Squeeze your glutes muscle. Inhale, stretch your arms, fix your toes and heel, and when you exhale, bend right side and hold. 1. Keep breathing or normal breathing. 2, 3. कमर से नीचे आपका पूरा फिक्स होना चाहिए. 4. एल्बो आपकी पूरी सीधी. 5. सांसें सामान्य या तो लेते रहिए, छोड़ते रहिए. 6, 7 and 8. Inhale, come in center. Exhale, left side bend and fold. 1. Again, hip muscle is tight. 2, 3, 4. Elbow पूरा सीधा. 5, 6. Twist your body. 7, 8. Inhale, come in center. Exhale, both hands down. Take a deep breath in and breathe out. Come on, both feet together. We will practicing the sun salutation, dynamic sun salutation. Come on. Come in Samasthiti first. Inhale, raise your both arms up. Exhale, Namaste in front of your chest. Pranamashana. Come on, inhale, raise your both arms up. Hip muscle is tight and bend back. Exhale, lengthening your spine and bend forward. Knee down, inhale, right leg back. Last. Exhale, left leg back and come in high plank. Inhale, drop your knee. Exhale, chest and chin down. Inhale, come in cobra pose. Exhale in mountain pose. Inhale, right leg in between your both arms. Exhale, left leg in between your both arms. Inhale, raise the both arms up and arch back. Hastottanasana. Exhale and Pranamashana. Pranamashana and Pranamashana. Now inhale, Hastottanasana, bend back. Exhale, lengthening spine and bend forward. Padhastasana. Knee down, inhale, left leg back. Slowly right leg back, come in high plank. Inhale, drop your knee. Exhale, chest and chin down. Toes out, inhale, come in cobra pose.
Exhale and mountain pose. Now inhale, left leg in between your both arms. Exhale, right leg in between your both arms. Inhale, raise your both arms up and arch back. Exhale and Pranamashana. One more time, inhale, Hastottanasana. Exhale, Padhastasana, bend forward. Knee down, inhale, right leg back. Slowly left leg back, come in high plank. Inhale, drop your knee, exhale, chest and chin down. Toes out, inhale, come in cobra pose. Exhale and mountain pose. Now inhale, right leg in between your both arms. Left leg in between your both arms. Inhale, raise your both arms up, arch back. Exhale and Pranamashana. Good. Again inhale, Hastottanasana. Exhale and Padhastasana. Good. Knee down, your left leg back. Come on. Right leg back and left पैर फिर से दोनों हाथों के बीच. Come on. Yes. Again change the leg. Come on, change. Again change. 4. Come on, change 5. Come on, change 6. Again 7. 8. 9. And 10. Come on, right leg back and come in high plank. Come in high plank. Inhale, drop your knee. Exhale, chest and chin down. Inhale, come in cobra pose. Exhale and child pose. Sasankasana. Again inhale, come in cobra pose. Dynamic practice of Sasang Bhujangasana. Exhale and child pose. Come on, inhale, cobra pose. Exhale and child pose. Again inhale, cobra. Exhale and child pose. One more time, inhale, cobra. Exhale and child. Last time, inhale, come in cobra pose. Now exhale, come in mountain pose. Come in mountain pose. Come in mountain pose. Now left leg, left hand outside. Come on. Right leg, right hand outside. Again left leg back. Left leg back. No. Come on. Right leg back, left leg, left hand outside. 2. If possible, jump करके या तो simple. Okay, come on, change the leg. 3. Come on, change. 4. Come on, change. 5. 6. Again, change. 7. 8. 9. 10. Okay. Now right leg, right hand outside. Come in Malasana. Come in Malasana. Good. Come in Malasana. Index finger, middle finger और thumb से पैर के अंगूठे को पकड़िए. You can practice the Vayu Niskasana. When you inhale, look up. Exhale, head down, stand up. Good. Again inhale, sit down, look up. Complete exhale, stand up. Once again inhale and exhale. Come on, inhale, exhale and hold. 1, keep breathing. 2, prepare your body and mind for upcoming practice. Keep breathing, keep breathing. Last 5. Come on, 4, 3, 2, 1. Come on, hand. दोनों हाथ जमीन पर, दोनों पैरों के बीच. Right leg back, left leg back. दोनों घुटना जमीन पर. Come on. Now, prepare yourself for plank position. First, adjust your shoulder and wrist as one line. कमर पे जिसका भी ज्यादा गड्ढा बनता है वो अपने पेल्विक को टिल्ट करिए, अपने कमर के गड्ढे को कम करिए.